So I hope you are going to cooperate for the same. Dear student, I think yesterday only we had seen that there was a discussion regarding success stories of financial managers or entrepreneur who have utilized their finance in a very appropriate manner, and they have created huge wealth. Okay, can you tell me some example which we had a case study yesterday? Wipro. Absolutely Product. right. Only Wipro was there, or some else were also there? Reliance Industry, textile. Yes, Reliance Textile. very good answers. बिरला बेटा वो स्क्रीन का देर इज अ प्रॉब्लम, वो ये जो है ना कैमरा वो ब्लर हो चुका है. ओके, सो फॉरगेट No अबाउट problem. स्क्रीन. सुनाई दे रहा है ना प्रॉपरली? आप Yes, लोग yes. आंसर वैसा ही है. देखो अभी ऐसा करूंगा ना, दिखेगा, इट विल बी प्रॉपर. दिख रहा है? सो नो वरीज. Today, as we have discussed that we are going to discuss the failure story, case studies for that. That is also a big lesson for us, being the finance manager. So, can you guide me or give me certain suggestions, failure stories or failure case studies? Sir, Kingfisher Airlines. Absolutely right. This is best example. Anything else? Anything else other than Kingfisher? Okay, as Sri Hari has rightly stated, let me put this as an example. Yesterday, you have seen the glory of Reliance or Wipro at right time with right decision. Just 1 second. Huh? Nokia is also a very good example. So I told you two things are very important. One is research and innovation. Yes, Reliance Telecom is again a very good example. I mean, now you have really understood the concept of financial management. So let me first put one by one case study. Could you, in a position to explain those case studies to me? Do you have any detail about that? Okay, no problem. Let me first put the example of your own. Just now, Sri Hari has stated regarding Kingfisher. You must be knowing Kingfisher is very, very renowned brand in what? airline Airline. Absolutely wrong answer. उनका बेसिक इंडस्ट्री क्या था? alcohol type Sir, अल्कोहल, liquid. बियर. वर्ल्ड वाइड फेमस है उन लोग. किंगफिशर बियर इज स्टिल हाईली, आई मीन, traded and accepted across the globe. Huh? Then Yes, they have diverse. Beta. yes, sir. Both. And then if you go to Bangalore, you we have visited their plant. Then they have diversified because there in those process they required mineral waters. So slowly and gradually they started with mineral waters also. Okay, so you must have used the Kingfisher mineral water also. Am I right or not? Yes, sir. Okay. Yesterday I have given you the best example that Reliance till the date has not taken any step to get into the aviation. Am I right? आज तक उन्होंने एविएशन में स्टेप इन नहीं करा. Do you know why? No, sir. Because in aviation, the cost of operation, recurring cost is very, very high. Of course, you will have a name, brand, everything. But the cost of operation is very high. Okay? Very, very high. You won't believe एक flight take off करने के लिए and landing के लिए it required crores of rupees.
including the higher charges of aircraft. Majority of the airlines, they don't have their own aircraft. Can you believe that? It's a hardcore fact. Okay. So that is why they don't want to invest. An investment on recurring basis. Suppose, let us take an example of metro. This is one-time investment. एक बार पूरा tracking कर दिया, coaches बना दिए, other thing कर दिया, forever they are going to earn from this. Agreed or not? Yes, sir. That is not there in aviation. Okay, one second. Fisher has acquired was which company? After initiated aviation, first and foremost, they have diversified the fund in aviation, which was the wrong step. Any wise and intellect business entrepreneur or industrialist in India will never ever dare to invest. And the period what he has or the company has selected, early 20s and late 90s. Okay, so that was first wrong step what the Kingfisher or UB Group, actually it is UB Group, has taken. Okay, then after that the second mistake what they did, they have acquired another low fare carrier aviation industries. What was that? Can you tell me? Kingfisher ने acquire करा था एक company. Anybody who can recollect and tell me? That was Deccan Airlines. वो पूरा का पूरा acquire किया था. उन्होंने तो पैसा बना लिया. But for this company, it was a huge loss. Then subsequently, they have invested fund. उसके बाद कहाँ पैसा डाला? Tell me. IPL में पैसा डाला उसने. कौन सा फ्रेंचाइजीज उनका है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. यस. और आज तक का क्या परफॉर्मेंस है? एक भी आईपीएल नहीं जीती. तो सोचो. ना दीपिका मिली ना पैसा मिला. लॉस इन ऑल सेक्टर. सो ऐसा नहीं है कि यू विल ऑलवेज गेट द सक्सेस स्टोरी. There are failure case studies also, and you have rightly stated. Wadia Group, I think you must be knowing. Wadia Group पता है? Nash Wadia करके सुना है आपने? इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम है. उनका भी एक आईपीएल है. Punjab Kings. शाबाश. Very good. Along with Preeti Zinta. यस. उनका बेसिक इंडस्ट्रीज क्या है और इसके अलावा क्या क्या है उनके पास, वाडिया ग्रुप के पास? एक दो इंडस्ट्रीज बता सकते हैं आप? Transport, हाँ बेटा कृष्णा, यस यू टेल मी. transporting का I think. क्या ट्रांसपोर्टिंग? ना 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 ना. I mean, नॉन इंडस्ट्री बताना. सर ब्रिटानिया इंडस्ट्री. एब्सोल्युटली राइट आंसर. एंड दे वर आल्सो द टेक्सटाइल प्लेयर, हाँ, 70s में. देन दे वेंट टू ब्रिटानिया. और उसके आगे कहाँ गया वो लोग? यू नो गो एयर, पता है? गो एयर आपने सुना है नाम? yes. हाँ सर. Yes, sir. वो भी वाडिया ग्रुप का है. Sir, Bombay Dyeing also. हाँ सॉरी बेटा. Bombay Dyeing also. यस. Yeah. मैं बोला ना टेक्सटाइल से चालू किया था. I did not wanted the name to be disclosed because that is in verge of dying now.
Yes. but they could able to survive. अभी तक चल रही है ना कंपनी, इनकी तरह तो Yes, sir. बर्बाद हालत नहीं हो चुकी है, Yes, sir. because they have not done any expansion. They have not hired entire aviation like Kingfisher has done or Jet Airways has done. जेट ने भी पूरा का पूरा सहारा एक्वायर्ड किया था, याद है? जिसने बेचा वो तो एकदम प्रीमियम निकाल के निकल गए. They created capital gain, capital reserve by selling their business. Okay, but there was a huge loss for these people. Okay, I wanted to share one video, as someone has rightly stated, Anil Ambani ka. Unfortunately, I do not have on my laptop. So just go through, and that will also give you a very, very good insight, because of wrong decisions, how the financial management is going to damage your industry. Just give me 2 minutes. I have shared with them. I'm just sharing with you all also. Just give me 2 minutes. Huh? Yes. Yes. Yes, I have shared with you. If someone who has joined with mobile phone, I'm allowing them to share their screen. Kindly share your screen so that it will be visible to everyone as a case study. If you have joined with your mobile phone, any of you just share your screen, it will be visible to everyone. I have shared in your group. Have you got that? Dear student, Sir, can I? yes, please. Okay. सर स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी? मैं एक सेकंड. अभी आपका स्क्रीन दिख रहा है बेटा? ए हाँ, ओके सर, मैं शेयर. हाँ, जस्ट आप ऑन करेंगे उस लिंक को. यस, आवाज भी दे देना. सर वीडियो की वॉइस नहीं आया. मेरे को भी वॉइस नहीं आ रहा है. देखना थोड़ा वॉइस का क्या प्रॉब्लम है बेटा. सम्राट, कृष्णा तेरा माइक बंद कर, उधर देखना, तेरे सिस्टम में ऑप्शन रहेगा उसका, वीडियो वॉइस का. अब ई कॉमर्स फोन वाले में समझाओ जरा, समझाओ जरा. एक बार जूम का तेरा म्यूट कर दे माइक, और अब वीडियो लगा. वॉल्यूम बटन करना, और उसमें ऑप्शन देख, ऑप्शन रहेगा ऑप्शन. ये तूने वायरलेस हेडफोन पहना है? हेलो, ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट कर अपने हेडफोन को.
क्या दिक्कत है? Sir, shall I try? तुम करना, मेरे मुझे पास नहीं तो बेटा, लैपटॉप किस नहीं होगा। कोई भी बताओ, इसमें बहुत अच्छी तरह से पूरी उनकी फेल्योर स्टोरी समझाई गई है। कोई भी Sir, should I try to आई connect? डोंट माइंड, यस एनीबडी। कृष्णा अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर तो मैं ट्राई करती हूँ। सर जा रहा है क्या आवाज? नहीं बेटा, तेरा आवाज वाला नहीं आ रहा था, बोलो सर। सिर्फ पिक्चर आ रहा था। वॉइस हमें किसी फिर को कोई सुनाई और नहीं दे ट्राई रहा। करो फिर। Anyone else can try? आवाज नहीं आ रही है सर। मुझे is the अभी भी screen सुनाई visible? नहीं दे रहा बेटा। यस, स्क्रीन विजिबल बट आवाज नहीं आ Visible है screen? स्पीकर। आई बिलीव इन लोग को हैंड्स फ्री निकाल के सिस्टम माइक लेना पड़ेगा। हैंड्स फ्री निकाल दो, और जो तुम्हारा लैप सर हैंड्स फ्री सॉरी, अटैच नहीं किया है। हाँ तो आना चाहिए। तुमको सुनाई दे रहा है निकिता? आर यू हाँ एबल टू सर, हियर? मुझे सुनाई दे रहा है, मैं प्ले कर रही हूँ। हाँ तो इधर भी आना चाहिए। Yes देन sir, I am able to hear. द सेम थिंग शुड कम हियर ऑल्सो। ट्राई वंस अगेन। सर वो वीडियो का जो क्वालिटी है ना वॉइस का, वही लो है, इसीलिए वो सुनाई नहीं दे रहा है। Are you able to hear you? I mean, at your place, at your mobile phone? I am able to hear it यस in my यस सर। place. हाँ तो just hear Video and just quality, see. voice quality is very Yes, yes, it is very interesting. You will get to know what has happened with Anil Dhirubhai Ambani. Very nicely explained. Let it come here as it is, but आप लोग सीखो and you just go through entire thing. I'm going to ask few question after this case study. मैं भी अपने मोबाइल पे चेक कर लेता हूँ। ओके सर। जो 4 लाख करोड़ का मालिक हो, क्या वो ये कह सकता है कि मुझे अपना घर चलाने के लिए घर के गहने बेचने पड़ रहे हैं? जी हाँ, ऐसा हुआ है। आई बिलीव कोई वीडियो चलाओ, मैं साउंड दे सकता हूँ। Sir, shall I Krishna, try? yes, someone just यस यस put your video on. I'll give the sound. Be quick, huh? It's of 5 minutes. Be quick. From beginning, huh? Please. इसकी
संपत्ति 4 लाख करोड़ की हो, जो 4 लाख करोड़ का मालिक हो, क्या वो ये कह सकता है कि मुझे अपना घर चलाने के लिए घर के गहने बेचने पड़ रहे हैं? जी हाँ, ऐसा हुआ है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि भारतीय उद्योग जगत के बहुत बड़े परिवार का एक सदस्य है। ये हैं अनिल अंबानी। अनिल अंबानी की संपत्ति 4 लाख करोड़ हुआ करती थी जब वो अपने भाई मुकेश अंबानी से अलग हुए थे, जब धीरू भाई अंबानी की संपत्ति का दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनिल अंबानी को इतना जबरदस्त नुकसान, इतना बड़ा घाटा हुआ और वो लगातार कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं? आइए हम हमारे देश के दिग्गज कारोबारी व्यवसायी, बहुत बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी के रिलायंस कंपनी दोनों भाइयों मुकेश और अनिल को विरासत में मिली और अनिल अंबानी को नए जमाने का कारोबार यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम और एनर्जी सेक्टर मिला। लेकिन नए जमाने के कारोबार को मिलने के बाद भी अनिल अंबानी कोई कारोबार में कमाल नहीं कर पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनिल अंबानी का इतना बड़ा कारोबार और उसके बाद भी उन्हें जबरदस्त घाटा हुआ और आज उनकी ये स्थिति हो गई? ये साल 2002 की बात है। आरकॉम की शुरुआत हुई थी और उसके बाद क्या हुआ? एक के बाद एक गलती अनिल अंबानी करते चले गए। 2002 में आरकॉम की शुरुआत पर एडीएजी ने सीडीएमए टेक्नोलॉजी अपनाने का फैसला किया, जो कि एक बेहद गलत निर्णय सिद्ध हुआ। ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G तक सीमित है और इसलिए जब 4G और 5G का जमाना आ गया तो आरकॉम को मैदान से बाहर होना पड़ा और अनिल अंबानी के लिए बहुत बड़ा नुकसान सिद्ध हुआ। और 2008 में जब आरकॉम को स्पेक्ट्रम मिला तो आप अंदाजा लगाइए उस पर 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका था। रिलायंस पावर ने साल 2008 में आईपीओ से रिकॉर्ड 11,563 करोड़ रुपए जुटाए थे। उसने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा कुल 28,200 मेगावाट क्षमता के 13 गैस, कोल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को गैस नहीं मिल पाई। अनिल अंबानी को रिलायंस पावर के असेट्स को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा और 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश अनिल अंबानी का फंस गया। 2005 में डिफेंस सेक्टर में कदम रखते हुए अनिल अंबानी ने पिपावाव डिफेंस को खरीद लिया। अनिल अंबानी ने ये कंपनी खरीद तो ली, लेकिन इस कंपनी पर पहले से ही 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और आगे चलकर 10,700 करोड़ रुपए का ये कर्ज अनिल अंबानी नहीं चुका पाए। आईडीबीआई बैंक और आईएफसीआई ने इसे एनसीएलटी में घसीट लिया। साल 2018 तक अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएजी समूह की कंपनियों के पास 1.72 लाख करोड़ का कर्ज हो गया था। करीब 46,000 करोड़ रुपए के कर्ज की वजह से ग्रुप की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को बैंकरप्सी अदालत का सामना करना पड़ा। 2010 के 27,710 करोड़ रुपए की तुलना में 2020 तक आरकॉम की आय घटकर 1,734 करोड़ रुपए रह गई। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2G घोटाला हुआ। ये बड़ा घोटाला था। 2 लाख करोड़ रुपए की रकम अनिल अंबानी की इस घोटाले की वजह से फंस गई। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान था। इसके बाद साल 2018 में अनिल अंबानी ने खुद कंपनी की एजीएम में ये घोषणा कर दी कि वो टेलीकॉम सेक्टर से बाहर हो रहे हैं, यानी कि अब वो इसमें कारोबार नहीं करेंगे। लेकिन तब तक बहुत बड़ा घाटा उन्हें हो चुका था। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में कई सारे बैंक्स ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कम्युनिकेशन को 1200 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा था और इस कर्ज के लिए अनिल अंबानी ने खुद अपनी पर्सनल गारंटी भी बैंक को दी थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने अनिल अंबानी के खिलाफ आदेश देते हुए दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का इसके बाद आदेश दे दिया। अपने सबसे अच्छे समय में साल 2008 में अनिल अंबानी के रिलायंस